Assalamu alaikum. We are formally going to begin strategic performance management. But before that, I would just like to confirm if any one of you can write in chat or maybe respond that can you hear my voice? Is it clear? Thank you very much. So before we formally begin this subject, a brief introduction about myself, and then we need to know, or we need to really believe in, where I totally focus a lot, that whether this subject is important, what is the importance of this subject, why should we study it, why ICAP has included it, because now we are going to study strategy. And if we talk about strategy and we don't know strategy by our own heart, we can never conquer that, and that is something I truly believe. So हम CA में अकाउंटिंग पढ़ते हैं, टैक्स पढ़ते हैं, कंप्लायंस के जितने भी आपकी चीजें हो गई, corporate laws and everything, and we also study business finance decision and those things. But this is the area where I believe, like back in 2010 when I was studying this, so आप हमेशा ध्यान में ये सोचते थे, उस वक्त इसका नाम BM था, बिजनेस मैनेजमेंट, और हमें ऐसा लगता था कि यार क्या इस सब्जेक्ट को वाकई पढ़ने का फायदा है या नहीं है. एंड जब तक आप खुद ट्रूली यू डोंट बिलीव दैट, आप उसको वो एफर्ट दे ही नहीं सकते हो जो एफर्ट उसके लिए रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू नॉट ओनली पास दैट बट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ एज वेल. So brief introduction about myself. My name is Waqar Manzoor. I am Associate Chartered Accountant. Together with that, I have done Masters in Business Administration from Karachi University. I did my articleship from AF Ferguson, worked there for around 5 years from back in 2010, 2015. Then I moved to Lucky Summit as Manager Internal Audit, worked there for around 3 years. Then went to Hub Power Company as its head of audit for some of its subsidiaries and worked there for almost 3 years as well. And now recently I moved to Emaar, Pakistan, where I'm working as head of finance and looking after its Karachi project. So it's actually a subsidiary of Emaar Dubai, jahan Burj Khalifa, or it has a multinational, so it's in India as well, Egypt, Saudi Arabia, Turkey, and few other regions. That was a brief introduction about my curriculum or my professional experience. Apart from that, I am currently president of CA Toastmasters Club Karachi, ICAP. It is a public communication and leadership forum jahan pe from various chartered accountants, various students, various senior people who are either CEOs or CFOs in different companies meet there every Thursday, and other than chartered accountants as well. I am also indulged in some voluntary activities related to the Citizen Foundation, Indus Hospital, and few other things. But coming to this subject then, and if we talk about strategy performance management, हम ये इसकी जरूरत क्यों है पढ़ने की? हम तो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, हमारा नाम है चार्टर्ड. चार्टर्ड मतलब बेहतरीन, जो दुनिया का सबसे आला है, और अकाउंटेंट. तो देन व्हाट इज द नीड कि हम वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिस सब्जेक्ट को हम कहते हैं कि स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये क्या चीज़ है जिसके अंदर हम मार्केटिंग की बातें भी करते हैं, हम ह्यूमन रिसोर्स की बातें भी करते हैं. सो व्हाई आर वी स्टडिंग दिस? सो जस्ट आई वुड लाइक अ क्विक response from you guys. What do you think, whether there is need for it? Be very honest. If you think there is no need, that's fine. But if there is need, so what is the need to have such subject? Any one of you, if you can, I am not sure, you can turn on your mic, or if you can write in comment. What do you think, whether there is the need of this subject? And if you think there is a need of subject, why do you think so? And if you don't think there is a need of subject, so why do you think so, Dad? I am waiting for your comments. I believe that all of you believe that, since the last comment was yes, sir, that there is a need of this subject, or none of you believe that there is a need of this subject. All right, so let's talk about the world, how world is moving at the moment. हम आज से 15-20 साल पहले बात करते थे, या 10-15 साल पहले,
तो किसी भी बिजनेस को आपको एनालाइज करना होता था, आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखते थे। आप ये देखते थे कि ये बिजनेस इस वक्त कितना कमा रहा है, ये ठीक है। सो आप ये देखते थे बिजनेस कितना कमा रहा है, इसकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, और उसके बेसिस पे ऊपर आप डिसीजन लेते थे कि क्या हमें इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बिजनेस कितने का होना चाहिए। बट इन लास्ट 20 years the world has changed drastically and I will give you some examples of that कि वो किस तरह से drastically change हुई है, that now profit is no more the right indicator to determine even the business valuation or whether to invest in business or not. Let's talk about basic example. आप सबने नाम सुना होगा दराज का. We talk about दराज, तो पाकिस्तान में the Amazon of Pakistan or whatever we call it, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है. दराज को कुछ टाइम पहले अली बाबा ने परचेज किया. इफ यू लुक एट दराज हिस्ट्री, सो इट वाज अ लॉस मेकिंग एंटिटी. आई जस्ट नीड अ मोमेंट, गिव मी अ सेकंड. पैसा जाया हो रहा है, बट देन वंस दे हैव अ गुड सेल इन दैट बिजनेस, दे सेल दैट बिजनेस to some other company and they say, see, we have invested $10 million rupees or dollar in this business, but ठीक है, ठीक है, थैंक यू. सो अब वो ये कहते हैं कि हमने इतना बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है, हमने $10 million इन्वेस्ट किए, बट ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट है. बट अगर आप देखो फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ दिस बिजनेस, जो ये फ्यूचर में कमा के देगा, दैट इज मच मोर देन जो आज ये भले लॉस में है, ये फ्यूचर में इतना कमा के देगा. इस वैल्यूएशन के ऊपर जितना हमने पैसा इसके ऊपर डाल दिया है, इसके ऊपर जो हमने गुडविल बनाई है, we want to earn from that, we want return from that money. All right, that's one example. If we go to second example, one of the students said like in order to analyze your business performance we need this. लेकिन हम चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स से और फिर हम आते हैं कि इसमें हमारा रोल कहाँ आता है. Second example, how many of you have heard the name of Tesla, a car making company? If you can respond in comments, that would be great. Tesla electric cars जो बनाती है, how many of you heard its name? I believe most of you have. All right. So अगर आप कुछ numbers देखें, and let me explain you from those numbers how world are moving. दुनिया में Toyota used to be on top of market valuation throughout the world. Last 1 to 2 years में टेस्ला का नंबर टॉप 10 में भी मुश्किल से आता था अगर हम 3-4 साल पीछे चले जाते हैं. बट सडनली क्या हुआ कि टेस्ला ने जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इनोवेशन लाना शुरू हुआ, तो आपका इस वक्त वो भले लॉस में हो, इस वक्त वो भले कम कमा रहा हो, बट आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इतने ब्राइट हुए दैट पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि अब इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और ये हमें आज भले नहीं कमा के दे रहा है, ये आज कम कमा के दे रहा है, ये फ्यूचर में इतना कमा के देगा कि वो उन तमाम कंपनीज से ज्यादा कमा के देगा. सो आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू नंबर्स. जो मार्केट सेल्स थी टॉप 10 कंपनीज की अदर देन टेस्ला, दैट वाज $1300 बिलियन. $1300 बिलियन की हम बात कर रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन अदर देन टेस्ला. So just give me a second. All right. So हम बात कर रहे हैं 1300 बिलियन USD सेल्स. एंड देन हम टेस्ला की बात करते हैं, तो टेस्ला की जो सेल्स थी दैट वाज ओनली $26 बिलियन. अगर मैं इस पर्सपेक्टिव से सोचूं कंपेयरिंग 26 विद 1300, तो मुझे लगेगा कि मार्केट वैल्यूएशन, जो हम वैल्यूएशन की बात करते हैं, वो भी बहुत कम होनी चाहिए टेस्ला की फ्रॉम ऑल दोस कंपनीज. बट यू वुड बी अमेज्ड कि द मार्केट वैल्यूएशन ऑफ कंबाइन ऑफ दोस टॉप 10 कंपनीज जिनकी सेल्स $1300 बिलियन थी वाज अराउंड $650 बिलियन, एंड सेम वाज फॉर टेस्ला. टेस्ला और उन तमाम 10 कंपनीज की वैल्यूएशन कंबाइन सेम थी. एंड व्हाई इज इट सो? बिकॉज दे सी फ्यूचर स्ट्रेटेजी कि एक ऐसे बिजनेस में हमने इन्वेस्ट किया है जिसमें फ्यूचर इतना कैश फ्लो है कि दे विल ओवररन ऑल दोस 10 कंपनीज. नाउ टॉक अबाउट लेट्स से स्टार्टअप्स.
जो हमारे इस कोर्स में नेक्स्ट हिस्सा है या एक रिसेंटली एडेड हिस्सा है। इस वक्त पाकिस्तान में रिसेंटली स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं। पहले इंडिया में बहुत ज्यादा बूम था, सिलिकॉन वैली है यूएसए में जहाँ पे काफी है, बट पाकिस्तान में रिसेंटली है। और आपने काफी सुनी होंगी इस किस्म की बातें जहाँ पे हम ये कह रहे होते हैं कि $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है, $72 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है, बिकॉज दिस हैज बीन द रिसेंट टाइम जहाँ पे सडनली इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ी है स्टार्टअप्स के अंदर। सो काफी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है स्टार्टअप्स के अंदर। सो हाउ इज इट वर्किंग? लोग स्टार्टअप में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? व्हाई आर पीपल इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप व्हेन दे डोंट सी रिटर्न, और डू दे सी रिटर्न? अगर आप कोई भी स्टार्टअप उठाओगे इस वक्त, आप एयरलिफ्ट उठाओ, आप उबर उठाओ, आप करीम उठाओ, आप इवन रिसेंटली एयरबीएनबी का IPO हुआ, we will go to that as well. All those startups are in loss, none of them in profit. ठीक है? और वो फिर भी companies are investing money in that because companies see the prospect. All right, so we have a question that it's your first time you are doing this subject, and I given the overview of the subject. You have joined late. So no, I have not done yet given the overview of the subject. Rather, we have started in a way for those who have joined us late, in a way to understand the need for this subject. Why is this subject required in ICAP? To believe that this is required, and then we will go to the overview of the subject. So if you have joined late, don't worry about that. Right now, we are just focusing on that what are the reasons to include this subject, how world is moving, how world is working, and how do we see ourselves to fit in that area. तो अभी हम सिर्फ दुनिया की एग्जांपल्स की बातें कर रहे हैं, जहाँ पे हमने टेस्ला की बात की कि टेस्ला की मार्केट सेल्स बहुत कम है लेकिन मार्केट वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है। जहाँ पे हमने बात की स्टार्टअप्स की, अभी हम बात कर रहे हैं, और स्टार्टअप्स में हम ये कह रहे हैं कि स्टार्टअप्स जितने भी आप देखोगे उस वक्त वो लॉस मेकिंग होंगे। स्टार्टअप क्या है? एक वो बिजनेस, एक वो आइडिया जो कि एक आइडिया से आप बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे होते हो, और उसके दौरान आप लोगों से फंडिंग मांग रहे होते हो, बिकॉज यू हैव द आइडिया, यू हैव द टाइम टू इम्प्लीमेंट इट, बट यू डोंट हैव रिसोर्सेज। तो वहां पे आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, जो कि हमारे कोर्स में रिसेंटली फिर ऐड हुआ है और इसके ऊपर हम जाएंगे। जो वेंचर कैपिटलिस्ट आपको ये बताते, आपको पैसे देते हैं, आपका आइडिया सुनते हैं, दे लिसन टू योर आइडिया एंड देन दे इन्वेस्ट इन योर प्रोडक्ट। कि अगर उन्हें लगता है वाकई दिस इज द आइडिया व्हिच कैन गिव अस गुड रिटर्न, सो एक्चुअली इन्वेस्ट इन योर प्रोडक्ट सो दैट दे कैन गेट रिटर्न इन फ्यूचर। वो आज पैसे डाल रहे होंगे, आज कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, बट उन्हें क्या दिख रहा होगा कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। So we are just analyzing that how world is working, और क्यों फिर ICAP को बार बार अपने सिलेबस को चेंज करने की जरूरत पड़ी है in order to match their syllabus with the world, the way it is working or moving. इस बात के दौरान Airbnb का जिक्र आया था। फॉर एग्जाम्पल Airbnb was a startup। 3 दोस्त थे, 3 दोस्तों के पास कोई, उन्होंने एक घर बनाया, जिस घर को उन्होंने रेंट पे देना शुरू किया। रेंट पे देने शुरू किया तो वहां से उन्हें लगा कि यार ये तो एक पूरा बिजनेस मॉडल बन सकता है। एंड देन दे मेड अ बिजनेस मॉडल वेयर व्हाट दे डिड, दे मेड बिजनेसेस। एक जगह उन्होंने देखा बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे लोगों को रेंट पे घर चाहिए छोटे टाइम के लिए, फर्निश्ड हाउसेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, फ्यू डेज, कपल ऑफ डेज और वीक। एक जगह उन्होंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास घर में एक्स्ट्रा स्पेस है, लेकिन वो उसको देना नहीं चाहते परमानेंटली रेंट पे। वो चाहते हैं कि यार जब मुझे यूज करना हो मैं यूज कर सकूं, और जब मुझे यूज ना करना हो तो मैं उसको रेंट पे दे सकूं, ताकि दूसरे लोग उसको यूज कर सकें और उससे मेरी अर्निंग हो जाए। तो सॉ दैट मार्केट प्लेस, उन्होंने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट मांगना शुरू की कि हमें इस बिजनेस को हम बड़े लेवल पे बनाएं, हम इन्वेस्टमेंट मांगे। इफ आई टेल यू द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो उस बिजनेस में हुई थी इन Airbnb, that was 1 cent per share, 1 cent ही। Around 13 or 14 years back, I am talking about 2007 or 18, 1 cent की फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हुई। बट ओवर द टाइम वो बिजनेस बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और लास्ट ईयर उसका जब IPO हुआ है, और IPO के बाद जब वो शेयर डायरेक्टली मार्केट में ओपन हुआ है, तो वो शेयर ट्रेडेड बिटवीन $145 अराउंड USD।
हाउ डज व्हाई दिस पर्सन इन्वेस्टेड इन एयरबीएनबी एट 1 सेंट, तो इसमें जितने शेयर 1 सेंट के लिए होंगे, इफ यू थिंक एट द रिटर्न, जब वो $1 हुआ तो 100 टाइम रिटर्न हो गया, यानी 1 सेंट $1 बना 100 टाइम रिटर्न, $100 बने तो 10,000 टाइम रिटर्न। एंड जब 145 हम कह रहे हैं, तो $1 जो उसने इन्वेस्ट किया होगा वो $14,500 बन के उसे रिटर्न मिला। दिस मे नॉट बी द केस एवरी टाइम, बट दिस इज द फ्यूचर, दिस इज हाउ वर्ल्ड इज वर्किंग। यहाँ पे एक सवाल आता है जो बहुत ज्यादा सीए में डिस्कस होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आर बेस्ट विद नंबर्स। आई कैन टेल यू दिस, इसमें कोई शक नहीं है कि कभी भी पिछले मेरे 10 साल 15 साल कैरियर में आई हैव नेवर सीन कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को यूजुअली कोई नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट नंबर्स पे चैलेंज कर रहा हो। विद इन चार्टर्ड अकाउंटेंट देयर कैन बी डिस्कशन, देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट बहुत रेयरली आई नेवर सीन कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को टैक्स में, अकाउंटिंग में, ऑडिट में, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन में कोई नंबर में चैलेंज कर रहा हो। Everyone respect that, even the MBA, even the CA, I've seen they respect chartered accountants with respect to number. But when come to strategy part, one, we are not as good as we should be, or as is the requirement of the business. And that is why if you see most of the big organizations, the top or the CEOs of those organizations are not chartered accountants. And even sometimes they face challenge to reach next to CEO as well, because they lack this part in the business. They are good with numbers, they are best with numbers, what I call, but they are not good with strategy. They are not able to identify non-quantitative things in any scenarios. कोई भी सिनेरियो आता है तो हमें नंबर्स बता दो, नंबर्स के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से बता देंगे, जवाब दे देंगे हाउ शुड इट वर्क और हाउ डज इट वर्क। बट हमें जहां पे एक सिनेरियो आता है, क्योंकि रियल लाइफ बिजनेस में अगर आप सोचो, थिंक ऑफ अ बिजनेस, कोई भी कंपनी है, आप उस कंपनी में किसी भी पोजीशन पर मैनेजर है। जब हम आईकेप के पेपर कर रहे हैं तो आईकेप के पेपर में हम वो सारे नंबर आइडेंटिफाई करके दे देता है, ये सिचुएशन है, ये नंबर है, ये है, एंड हाउ डू यू वांट टू डू द वर्क। नाउ थिंक ऑफ द बिजनेस, जहां आप बिजनेस में हो और बिजनेस में आपके पास वो सारी चीजें नहीं है। बिजनेस में आपके पास क्या होगी, एक सिचुएशन होगी, जिस सिचुएशन में नंबर्स आपको खुद आइडेंटिफाई करने होंगे। नो विल one will provide you number, and that is where this ICAP comes, कि जहाँ पे वो स्ट्रेटेजी में, अब जब वो जा रहा है जिस तरफ, अगर हम ICAP कोर्स की बात करते हैं, जब मैंने इस कोर्स को पढ़ा था बैक इन 2010 और 12, तो उस वक्त बिजनेस मैनेजमेंट इसका नाम था। बिजनेस मैनेजमेंट को पास करने का क्या तरीका होता था? बिजनेस मैनेजमेंट को पास करने का ये तरीका होता था कि आप या तो पास पेपर पढ़ लेते थे, या फिर आप जो हो ICAP की स्टडी टेक्स्ट पढ़ लेते थे, जो कि बहुत पुरानी सी बनी हुई थी उस टाइम पे, और आपको पढ़ के वो सफिशिएंट होता था कि आप मजे से पेपर पास कर सकते हो। सो व्हाट स्टूडेंट यूज्ड टू डू, और इवन इफ आई टेल यू अबाउट माय सेल्फ, आप सिर्फ 5 पेपर याद कर लो, दैट इज सफिशिएंट। आपको लिखना थोड़ा सा आना चाहिए कि हाउ टू मोल्ड योर आंसर, और आपकी जिंदगी आसान होती थी। बट लाइफ वहां से बिजनेस मैनेजमेंट से चेंज होके बिजनेस मैनेजमेंट के साथ उन्होंने वर्ड लगाया स्ट्रेटेजी का। एंड हाउ डिड दे चेंज इट? दे सेड कि यार आप बिजनेस मैनेजमेंट नहीं, सिर्फ अब आपके सीनियर लेवल होता जा रहा है, तो आपको स्ट्रेटेजी पार्ट आना भी जरूरी है कि हाउ टू स्ट्रेटेजाइज दोज थिंग्स। और वहां पे उसने किसी हद तक सिनेरियोज डालना शुरू किए, लेकिन स्टिल द सिनेरियोज वर मच इजियर व्हाट इज कंपेयर टू द रीजनल अदर बॉडीज। अगर आप रीजनल जो आपकी ICAW हो गया, या अगर आप इवन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी देखें, तो उसकी निस्बत द सिनेरियोज वर स्टिल मच simpler, or rather we can say much shorter version, जिसमें आप बहुत easily आंसर की तरफ जा सकते थे। But now when ICAP is changing its policy, and now जिस तरह से नाम उसका चेंज किया है और जिस तरह वो कोर्स चेंज कर रहा है, it appears कि they expect much more from its students, and they will be testing much more in this respect in a way कि अब वो आपको बड़े सिनेरियोज देगा। जिस तरह MSA2 में आपके पास फुल सिनेरियोज आते हैं, यहाँ पे 1-1, 2-2 पेजेस के और इवन लॉन्गर देन दैट आपके पास सिनेरियोज आ रहे हैं, तो सिमिलर सिनेरियोज आपके पास अब इस CA के अंदर भी आएंगे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, जहाँ पे स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर, जहाँ पे वो आपको एक सिचुएशन देगा
you will have to take out the information from situation. अब क्या होगा कि आपको सिचुएशन में से खुद इंफॉर्मेशन निकालनी होगी और बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन आपको सजेस्ट करना होगा कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में. इफ यू थिंक, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. सो इफ यू थिंक, अगर आप ऑडिट का पेपर सोचते हैं, खासतौर पर जिन्होंने एडवांस लेवल का ऑडिट अगर पढ़ा हुआ हो, अकाउंटिंग के केस में भी सम केसेस में, और जिन्होंने अगर पुराना पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है बिजनेस मैनेजमेंट का भी, सो हाउ डज आईकेप वर्क? आईकेप वांट्स यू टू सी एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो वो आमतौर पर कैसे बोलता है कि यू आर ऑडिट पार्टनर, or you are head of HR, you are the CEO of the organization, or maybe you are head of marketing. पर आपके सामने एक सिचुएशन आ गई है and now you have to suggest what should be the answer. तो आपका जब जॉब रोल होगा, जब आप वर्ल्ड में जाते हो, प्रोफेशनल वर्ल्ड में, जिसके लिए आपका एक तैयार कर रहा है, एक चीज तो हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना. आपको टीबी, आपने ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट किया सिस्टम से, यू, क्योंकि अकाउंट्स बनाना इज सो सिंपल दीज डेज कि आपने सिर्फ, आपके पास लास्ट ईयर के अकाउंट्स बने हुए हैं, आप टीबी रिप्लेस करोगे, 90% काम आपका हो जाएगा. उसके बाद कुछ ट्रबल शूटिंग करनी है, यू गेट द अकाउंट्स. जो हम बात कर रहे होते हैं उसके अलावा टैक्स की, सो मोस्टली यू हैव स्पेशलाइज्ड पीपल फॉर दैट, जो कि टैक्स में बेस्ट हैं. टैक्स चेंज होता रहता है, बट दे हैव टूल्स जिसके थ्रू वो इजीली इस काम को कर लेते हैं. कॉर्पोरेट गवर्नेंस, भले कंपनीज एक्ट ऑर्डिनेंस से कंपनीज एक्ट आ गया, चेंजेस बहुत कम है कंपैरेटिवली, इजीली यू कैन कवर ओवरकम दैट. बट द बिजनेस जहां हम बात करते हैं, जहां पे एक्चुअल बिजनेस आ रहा है, वहां पे until and unless you have understanding of that business और फिर आपके पास एक्सपीरियंस हो, you cannot provide the solution. That will be a unique situation every time. अकाउंटिंग के केस में वो सिनेरियोस हैं जो कि उस पर आपको इम्प्लीमेंट करना है. अकाउंटिंग का नंबर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर दो, उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना बिजनेस सिनेरियोज में फर्क पड़ जाएगा. वहां पे स्ट्रेटेजी आपकी आपकी गलत स्ट्रेटेजी आपके बिजनेस को खत्म कर सकती है. इफ आई गिव यू सम एग्जांपल्स फ्रॉम द पास्ट, think of Nokia 10 years back. What does comes to the mind? If I think of Nokia back in 2008 or 10, it used to be the best company. यानी अगर हम कोई कंपनी ऐसी बोलें कि जो मोबाइल में टॉप पे आती थी, नोकिया और फॉर एग्जांपल ब्लैकबेरी, they were on the top. Think of those companies now. Where are they? What we believe they missed in their strategy, जिसने उनको फर्दर एग्जिस्ट करने से उनकी एग्जिस्टेंस को ही चैलेंज कर दिया. They thought at that time that their Symbiosis system, for example, for Nokia or BlackBerry, their own system is so good that they don't need support from any other software like Android or anything like that. They thought they were the best. That was their strategy. I am not saying that was right or wrong at that time, but they believed in that. But because that was not right strategy, they does not possess that position in business anymore. Think of Yahoo. Yahoo used to be the internet. जब इंटरनेट आया था in 90s, I remember कि अगर आप इंटरनेट यूज करना होता था तो Yahoo was considered to be the internet. कि वो that was everything. But email अगर किसी की होगी तो Yahoo पे ही होगी या maximum Hotmail पे होगी. But if you think of Yahoo or Hotmail now, so I believe they are nowhere. Think of many such businesses. Like if I talk about Netflix, most of you would know that what is Netflix. But if we talk about Netflix, 10 years back or 15 years back, everybody knew Blockbuster. Blockbuster की movies होती थी, cassettes होती थी. They used to send those cassettes और वो समझते थे वही business है. And they used to be the market leader. Netflix उसके बहुत बाद आया, strategically move किए online business. They saw the opportunity in online business. And that's where they are today, कि जहाँ पे दुनिया की शायद सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग सर्विसेज इज नेटफ्लिक्स एंड नाउ Amazon Prime and others are coming as well. जहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो प्लीज लेट मी नो. कोई सवाल, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई ऐसी चीज जो हम पूछना चाह रहे हो, समझ में ना आ रही हो, सो जस्ट लेट मी नो. So I believe there can be two scenarios. The first one is everything is clear, or do we have comment?
Are we supposed to study from like study text? आई नहीं अभी तक. All right. So don't worry about that. Study text कहाँ से पढ़ना है? We will be discussing that. एक part इसका जरूर आपको अब आ भी गया है. But don't worry about that part. देखिए हमें कहाँ से पढ़ना है? We will go to that. अभी इस पेपर को how we are going to move in this paper कि हम पहले अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे. When we are going to study the strategy, so पढ़ना कहाँ से है वो आपको सब करवाना मेरी जिम्मेदारी है. Don't worry about that. We will go in depth of each and every topic and हम ये decide कर रहे होंगे कि हमें कहाँ से पढ़ना है और कैसे close करना है. So that's our part. इस वक्त मुझे इस चीज की रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है कि दिस इज इम्पोर्टेंट. नॉट ओनली नंबर वन, अगर मुझे सीए कंप्लीट करना है तो पास करना है, दैट्स ऑब्वियस, एवरीवन ऑफ अस नो दैट. दैट्स वन पार्ट, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट whether we truly believe this is important, because if we truly believe, until unless we truly believe, we will not be able to study it in a way it requires. ऑलराइट, उस तरह से पढ़ने के लिए जब तक हमारा दिल से ही नहीं माना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स की क्या होता है बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाउ डू वी सी, हम ये समझते हैं कि यार हमें अकाउंटिंग आना जरूरी है, हमें ऑडिटिंग आना जरूरी है, हमें टैक्सेशन आना जरूरी है, बट ये बिजनेस मैनेजमेंट तो हम सिर्फ पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, वरना हमें क्या करना इस सब्जेक्ट था. बट लेट मी टेल यू द अदर साइड ऑफ स्टोरी विच आई बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप इंशाल्लाह सीए क्वालिफाई कर लेंगे, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरे पहले 5 साल मैंने 6 साल ऑडिट में काम किया, तो मेरे लिए शायद ऑडिट ही मेजर इंपॉर्टेंट था, मेरे लिए टैक्स और कॉर्पोरेट उस तरह से नहीं था. अब मैं फाइनेंस में हूँ तो फाइनेंस में चीजें और स्ट्रीमलाइंड होती हैं, तो शायद ऑडिट, टैक्स या कॉर्पोरेट की नॉलेज मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी बिजनेस डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे बिजनेस फाइनेंस, क्योंकि वो एवरीडे आ रहे होते हैं, वो हर वक्त आपके पास ऐसी सिचुएशंस आ रही होती हैं जो कि एचआर से रिलेटेड हो सकती है, जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकती है, जो कि एथिक्स से रिलेटेड होगी, जो आपकी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड होगी, वेयर यू हैव टू टेक डिसीजन. सो इस वजह से मेरा इस पर बहुत ज्यादा फोकस है इस बात पे, क्योंकि ये हम बात बार बार नहीं कर पा रहे होंगे, ये पहली क्लास है जिधर हम इसको बार बार डिस्कस कर सकते हैं कि वी ट्रूली बिलीव कि दिस सब्जेक्ट is not only required for passing ICAP exam, but it is also required to survive in this new world. And we should be thankful to ICAP जो इस सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली अपग्रेड कर रहा है, जो इस सब्जेक्ट को चेंज कर रहा है, उसकी कोशिश कर रहा है कि जो इस वक्त मॉडर्न वर्ल्ड का ट्रेंड है उस तरह इसे कर सकें. See, ICAP had two options. Number one option was कि जिस तरह से, अगर आप लोगों में से जिन्होंने मैट्रिक या 9th में कंप्यूटर पढ़ी हो तो उन्हें ये पता होगा कि वो शायद रिसेंटली आई हर्ड 1 या 2 साल पहले चेंज हुई है, बट अदर देन दैट उसकी वही चीजें आज तक पढ़ाई जा रही थी जो कि 20-30 साल पहले थी, कि माउस क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, और वो बिल्कुल ही वो चीज हो गई थी जो अब बच्चे को पता है. दैट इज नो मोर रेलेवेंट. The other option which ICAP is trying to do, जिसमें किसी हद तक सक्सेस होगी, किसी हद तक चैलेंजेस आएंगे, is to update its syllabus and course. तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं इस कोर्स में जो मेजर नई चीजें आई हैं या जो चीजों को उसने साथ में शामिल किया है, तो वन ऑफ दोज थिंग्स आर स्टार्टअप्स. अगर आप में से किसी ने अभी तक स्टार्टअप का नाम नहीं सुना है या नहीं पता इसके बारे में, so that means you are not upgrading yourself as per the requirement of the course और ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान, वो लास्ट ईयर वाज द ईयर जिसमें अराउंड मोर देन $100 मिलियन आपके पास इन्वेस्टमेंट आई है फ्रॉम डिफरेंट वेंचर कैपिटलिस्ट, एंड दैट इज अ वेरी बिग नंबर, बिकॉज आपने जो लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट आई है, दैट only from last year was more than combined investment in last 10 to 20 years. So that is why स्टार्टअप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल स्टार्टअप में if you talk about few name, तो एयरलिफ्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बाजार का नाम आप लोगों ने सुना होगा जिनको इन्वेस्टमेंट मिली है. रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन क्रेव, जो कि who claim to deliver within 10 minutes any grocery to your home. They are in selected areas at the moment, but these all are what ideas. बाजार आपको ग्रोसरी प्रोवाइड कर रहा है, क्रेव ने एक और आइडिया लाया कि 10 मिनट के अंदर हम पहुंचाएंगे. तो द वर्ल्ड इज मूविंग सो फास्ट. उन्होंने कहा कि अब हम ऐसे आइडिया लाते हैं कि यार ग्रोसरी पहुंचाने वाले तो बहुत सारे आ गए, एयरलिफ्ट भी ग्रोसरी पहुंचा रहा है. पहले उन्होंने बसेस अपनी लाए या पोस्टर्स लाए कि जो आपको एसी ट्रांसपोर्ट से शेयर, उबर या करीम एक पूरी गाड़ी होती है, उन्होंने कहा पोस्टर होगी तो कॉस्ट कम होगी.
हम आपको पहुंचाएंगे, बट आफ्टर कोविड दे फेस चैलेंज, तो डिलीवरी की तरफ आ गए। बट क्रेव कम अप विद आइडिया अहेड कि हम 10 मिनट के अंदर पहुंचाएंगे, दैट्स आवर चैलेंज। तो हाउ डू दे आल्सो गेट फंडिंग? जब फंडिंग चाहिए तो फंडिंग के स्टार्टअप के साथ बहुत जरूरी होता है वेंचर कैपिटलिस्ट, जो कि हमारे कोर्स का अगेन पार्ट है इस बात के हाउ डज वेंचर कैपिटलिस्ट वर्क। एंड इफ यू डोंट सी, बीबीसी के ऊपर एक वीडियो आती है जो शार्क्स वेरियस इन्वेस्टर्स उसके अंदर होते हैं, इफ यू हैव नेवर हर्ड दोज, आई बिलीव यू मस्ट शुड, कि आप जाके देखें, जस्ट सर्च बीबीसी शार्क वीडियोस, यू विल सी डिफरेंट, वहाँ पे जो स्टार्टअप्स के लोग होते हैं दे प्रेजेंट देयर आइडियाज, हाउ डज दे प्रेजेंट देयर आइडिया, एंड बेस्ड ऑन दोज आइडियाज जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं दे डिसाइड कि क्या हमें बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। Why I am telling all these? Because this is the future. In that case, for example, एक जो मुझे वीडियो याद है, मैं अक्सर अपनी पीसीएससी की क्लास में दिखाया करता था, that was यहाँ पे एक बंदे का ये आइडिया था कि यार जब हम कंप्यूटर पे कोई भी काम कर रहे होते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन सेव कर रहा होता है कंप्यूटर और वो बेच रहा होता है किसी को। इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर अ प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। तो हम क्रोम यूज कर रहे हैं, हमारी इंफॉर्मेशन वो सेव किए जा रही है, क्या सर्च कर रहा है वो कहीं और बेच रहा है। तो उसने कहा मैंने एक नया ब्राउजर बनाया, एक नई एप्लीकेशन बनाई है जिसके तहत बंदे के पास ऑप्शन होगा, या तो वो मना कर दे मेरी इंफॉर्मेशन कोई सेव ना करे, या वो अलाउ करे इंफॉर्मेशन सेव करना और उसे आगे बेचना, बट जो उस बेचने से मुझे पैसे मिलेंगे उसकी एक सर्टेन परसेंटेज, फॉर एग्जांपल 80% वो बंदे को मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ मनी, और 20% वो कंपनी रखेगी। तो अभी हमें कुछ नहीं मिलता। उसने क्या कहा कि उन यूजर्स को अपना पार्टनर बना दें। बट why I am highlighting all these things in this subject today is because to know the importance कि कितनी इंपॉर्टेंस है, किस तरह से वर्ल्ड चेंज हो रही है और उस वर्ल्ड में अपने आप को अपडेट करना हमारे लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है। देन वन थिंग कम्स बिग डाटा। आप लोगों ने सबने डाटा तो सुना होगा। डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके हम डिसीजन पे पहुंचते हैं। बट लास्ट 10 ईयर में क्या चीज चेंज हुई है जिससे हम उसे बिग डाटा कहने लगे? व्हाई आर वी कॉलिंग इट बिग डाटा? बिकॉज पहले आपके पास बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती थी। वी यूज्ड टू थिंक फास्ट। वहां पे हमारे पास क्या था? सिर्फ के रजिस्टर था, रजिस्टर के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ 2010 में जब मैं जंग प्रेस को ऑडिट करने गया, जंग की कोई 15-16 कंपनीज थी, तो कुछ तो उनके जियो चैनल और ऐसी कंपनीज थे जिनके सॉफ्टवेयर थे, बट कुछ उनकी ऐसी कंपनीज थे जिसके बड़े बड़े रजिस्टर थड्डे बने हुए थे और उस रजिस्टर के ऊपर डाटा लिखा हुआ था। तो वहां पे उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके किसी डिसीजन पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। हम आहिस्ता आहिस्ता आए सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब आपको सॉफ्टवेयर से लेजर एंड एवरीथिंग यू गेट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, पर आपके लिए जिंदगी में बहुत आसान हो गया ये काम टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन and reach to the conclusion. But that's where came the big data. And now how does big data work? कि वहां पे आपके पास इंफॉर्मेशन, ये डाटा बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा कैसे हम उसे डिस्कस करते हैं, बट इन दैट बहुत ज्यादा डाटा, हाउ you are going to analyze that data, that's very important, because if you don't analyze it in a correct way, you may reach to incorrect conclusion, and your strategy which is based on that analyzation of data would lead you to wrong decision, and everything can be ruined like it happened in case of Blockbuster, Nokia or Yahoo. We just discussed 3 things. I remember जब Yahoo को Verizon खरीद रहा था तो Yahoo की जो CEO खातून है, she said we did nothing wrong yet we lost. So that is the thing. She believes she did nothing wrong, but actually she didn't acted when it was required to act in the right direction. So जहाँ पे ये चैलेंज है, और वी विल लर्न हाउ टू ओवरकम सच चैलेंजेस इन आवर लाइफ। अब बिग डाटा में हम जब बात कर रहे हैं तो बिग डाटा, फॉर एग्जांपल इफ यू थिंक अबाउट मार्केटिंग, मैं फेसबुक की बात करूं, अगर आप लोगों ने फेसबुक पे कभी ऐड चलाया हो तो वो फेसबुक के पास इतनी बड़ी तादाद में डाटा मौजूद है कि वो आपसे पूछता है कि बताएं किस जियोग्राफिक लोकेशन में आपने चलाना है, किस टारगेट ऑडियंस पे आपने चलाना है, 18 से 25 साल वालों पे, 18 से 50 साल वालों पे, या 50 से 55 साल वालों पे। आपकी प्रोडक्ट वो है जो बूढ़े लोग यूज करते हैं, बच्चे यूज करते हैं, जवान यूज करते हैं। जेंडर क्या हो, आप ज्यादा फीमेल को दिखाना चाहते हैं, मेल को दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका रीजन क्या हो, पाकिस्तान हो, कराची हो, एजुकेशन, यू कैन इवन गो टूवर्ड्स के भाई आप ये बोलो किस एजुकेशन सेक्टर से, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की हुई है फेसबुक ने
जिसकी बेसिस पे वो आगे ऑफर कर रहा होता है कि वो एडवर्टाइजमेंट किसको क्या दिखाना है. इट वर्क्स इवन टिल दैट, हम जिसे कहते हैं इस हद तक उस पर काम करता है. आपने कभी अगर गौर किया हो, आप कभी दोस्त से भी बात कर रहे हो कि यार मेरा सवाद जाने का प्लान है, या फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड जाने का प्लान है, टर्की जाने का प्लान है, यू जस्ट गूगल इट वंस, पर आपको उसके एडवर्टाइजमेंट दिखना शुरू हो जाएंगे सडनली. सो हाउ इट इज वर्किंग, इट इज एनालाइजिंग द डेटा ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. आप ये सोचें, आप ये नहीं सोचें एज यू एज वन इंडिविजुअल, आप ये सोचें कि सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, दुनिया में जो 3 बिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं उन सबके साथ हो रहा है. तो उन सबका डाटा कलेक्ट करना, उन सबके डाटा को एनालाइज करना और उन सबके डाटा पे रिजल्ट देना is cannot be done without big data. So this is the need of time, this is where world is working, and this has also been included in our course. One more thing, अगर आप पहले देखते थे तो आपके कोर्स में CSR और ethics वो डाल देता था, अब उसने specifically focus to ethics किया है, because there is something which I can believe, or I think throughout the world as well believe कि जब भी कोई दुनिया में चीज आती है ना, तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि इसमें किस तरह से हम गलत कर सकते हैं, how we can find a loophole where we can actually do what we want to do. रात को हमने देखा सिग्नल बंद है, ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं खड़ा हुआ दिख रहा, we think to break the signal. वही हम हैं, बट हम जब दुबई में हैं, हम वहाँ उसी सिग्नल पे रुके हुए हैं, we will not break the signal because हमें पता है कि वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है. So, but what should be the ethics that whether there is camera or not, whether there is policeman or not, we do not break the signal. तो हमारे ethics ऐसे होने चाहिए जिस ethics की बेसिस के ऊपर जब हम डिसीजन मेकिंग करें तो no one can question our ethics. उसको हम थोड़ा स्पेसिफिकली डिटेल में भी पढ़ रहे होंगे, हम देख रहे होंगे हाउ डज इट वर्क, बट दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग. अभी तक मुझे कमेंट ये मिला था कि एवरीथिंग इज क्लियर अंटिल नाउ. सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, अगर कोई सवाल है, कोई मुश्किल है, परेशानी है, सो लेट मी नो. लेट्स मेक इट इंटरेक्टिव. तो अगर आप लोगों का किसी भी किस्म का सवाल हो, डोंट हेजिटेट टू आस्क. आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू शेयर answer or to discuss that, so don't worry about that. Whiteboard is not visible. Okay, so let me just try. Why is it not visible? यार आप लोग जल्दी बताया करें ऐसा कोई मसला हो. हम इतनी मेहनत से लिख रहा हूँ, आप लोग बता ही नहीं रहे. माय बैड, बट बता दिया करें. सो व्हाट आई हैव शेयर्ड, आई हैव नॉट शेयर्ड मच. जो मैं आपसे सिर्फ बातें कह रहा था, मैं वही लिख रहा था कि स्टार्टअप्स के नेम आई हैव गॉन थ्रू, तो मैंने वो लिखे थे. इससे पहले सीए के अंदर हम वी आर द बेस्ट विद नंबर बट नॉट विद द स्ट्रेटेजी. एयरबीएनबी की एग्जांपल दी थी मैंने, फॉर एग्जांपल के स्टार्टअप में एयरबीएनबी का जो पहला शेयर बिका था दैट वाज फॉर 1 सेंट. वो जब आईपीओ में गया और जब मार्केट ओपन हुई है तो वो मार्केट ओपन हुई $145 पे, जहां पे जो 1 सेंट यानी फर्स्ट करें जब 1 सेंट पे जिस बंदे ने इन्वेस्ट किया होगा जो $1, वो $1 बन गया $14,500. सो जस्ट थिंक ऑफ द नंबर, दीज आर क्रेजी नंबर कि 14,500 टाइम्स आपको उस पर रिटर्न मिला. देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट द सेल ऑफ टेस्ला, जहां पे हमने बात की थी कि 10 कंबाइंड कंपनीज जो टेस्ला के बाद हैं उन सबकी सेल मिला के 1300 बिलियन डॉलर है, $1300 बिलियन है. बट टेस्ला अकेले की सेल $26 बिलियन है, सिर्फ 26. बट येट इसकी मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन उन 10 कंपनी से ज्यादा है. रीजन बीइंग कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इसका ज्यादा है. सो जो दूसरा सवाल है ये जून के लिए है या दिसंबर के लिए है. वी आर टारगेटिंग फॉर जून कि हम अपना कोर्स बिफोर जून सेशन कंप्लीट कर लेंगे. बट इन ICAP it's again depend on your strategy, how you are going to plan for your subject. यूजुअली जब आप पहली अटेम्प्ट में 3 या 4 पेपर देने का प्लान कर रहे होते हैं, लाइक एट आवर टाइम इट वाज नेसेसरी कि आप 4 पेपर एक साथ दें. अब आपके पास ऑप्शन है, आप 4 से कम भी दे सकते हैं. बट आपका जो 1-1.5 साल का टाइम है जिसमें आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, इफ आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ,
तो मैं शायद कुछ सब्जेक्ट चाहूंगा कि मैं पहले खत्म कर लूँ, कुछ चाहूंगा मैं बाद में कर लूँ, ताकि मेरी क्लासेस लेने में इजीली मैनेजेबल रहे और फिर मैं खुद से प्रैक्टिस करता रहूँ। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन कि इट इज प्लान्ड फॉर जून 2022. If you are attempting in December or maybe next June, still you can take classes if you want, so that आपका कोर्स खत्म हो जाएगा and then you will have chance to practice it over the time whenever you get the time. और कोई सवाल? I am going to attend BFD and BMS in June, so that is good, that's great. दोनों एक दूसरे को कोरिलेट भी करेंगे इन सम केसेस, क्योंकि पहले आपका BFD समथिंग जहाँ पे आपका 80 और मोर देन 80% आर विद नंबर्स और वेरी फ्यू पार्ट इज विद थ्योरी। बट जब हम बात करेंगे, इसका जो न्यू नेम आ गया दैट इज स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो दैट इज मोर देन 80% और 80% विद थ्योरी, विद द स्ट्रेटेजी, विद द थिंकिंग, विद द हाउ डू यू राइट, हाउ डू यू ड्राफ्ट, बट देयर इज 20% पार्ट which works with numbers as well. उतनी एक्सटेंसिव वर्किंग नहीं होगी, उतनी डिटेल्ड वर्किंग नहीं होगी, बट कुछ जगह ऐसा होगा जहां वो आपको सवाल में नंबर देगा, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा बेस्ड ऑन दीज नंबर्स यू रीच टू द कंक्लूजन, एंड दैट्स वेयर आई एम गोइंग टू कम जस्ट आफ्टर राइटिंग कि यार कोर्स में आपकी जो मेजर ग्रेड है, वी विल डिस्कस दैट मेजर ग्रेड, और फिर हम उसके बाद आते हैं कि उस थ्योरी वाले पार्ट को किस तरह से हमें रिजॉल्व करना है, हल करना है। बिकॉज दो किस्म के बच्चे होते हैं, दो किस्म की बातें करते हैं। एक कहते हैं सर हम रट्टा लगा लें काम चल जाएगा, एक कहते हैं कि सर हमें इस कॉन्सेप्ट समझना है। दोनों केसेस में हमें किस तरह लेके चलना है, वी विल डिस्कस दैट। कोई और सवाल है तो बताएं। नहीं है तो हम चलते हैं आगे। आई होप व्हाइट बोर्ड इज विजिबल नाउ। अच्छा, अब जो आपका कोर्स है, ये मैं हमेशा ना बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं करता कि पहले क्या था। आप लोग कहेंगे तो मैं बता भी दूंगा पहले क्या था अब क्या है, बट लेट्स क्विकली आस्क, इज देयर एनी वन ऑफ यू जो कि दूसरी बार इस पेपर को दे रहा हो, या आप में से सब वही हैं जो फर्स्ट टाइम ही अपीयर हो रहे होंगे? यस, बीएमएस की बिल्कुल जो आपकी लास्ट टाइम थी उससे चेंज हुई है स्टडी टैक्स। इसमें कुछ चीजें हैं जो चेंज हुई हैं, कुछ चीजें सेम हैं, बट मैं इसका जवाब फर्स्ट टाइम आप हैं, फर्स्ट टाइम है, सो इफ यू आर फर्स्ट टाइम दैट्स बेस्ट। हम पास्ट की बात ना करें। अगर आप सेकंड टाइम भी होते तो मैं ये कहता कि इस वक्त आप भूल जाएं कि आप पहले क्या पढ़ के आते हैं। व्हाई आई एम सेइंग दैट? फर्स्ट टाइम है तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, सेकंड टाइम पे व्हाई डू आई से? I always say first attempt is the best attempt because you have the most chances to clear the paper in first attempt. Not कि IQ की कोई ऐसी पॉलिसी है, बट आपकी तैयारी ऐसे होती है। जब फर्स्ट अटेम्प्ट होती है ना, तो आप समझते हो, आप पूरी एफर्ट से एक चीज करते हो, ये सोच के कि ये मुझे नहीं आती, मुझे इस पे एफर्ट करनी है और मुझे पास करना है। इफ आई टेल यू माई स्टोरी, मेरा मॉड्यूल ए टू मॉड्यूल डी फर्स्ट अटेम्प्ट निकला, लेकिन डी में जाके एक पेपर रुक गया। मैं पोजीशन में जा चुका था, 11 पेपर फर्स्ट टाइम निकल गए, एक पेपर रुक गया। वो एक पेपर कई बार रुका ऑडिट का। रीजन वॉज कि मुझे लगता था मुझे तो ये आता है, बट एक्चुअली मुझे नहीं आता था। तो टू डी लर्न एंड टू रीलर्न इज मोर डिफिकल्ट इज टू लर्न फर्स्ट टाइम। सो इवन इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट थिंक ना कि इस पर नहीं सोचना पहले क्या सिलेबस था। अब नया आपके पास सिलेबस आ गया है, नया आपके पास कोर्स है, हमें उससे पढ़ना है, हमें नहीं सोचना पहले क्या था। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं, आपके पास पुरानी चीजें हैं, तो स्टिल व्हाट आई वुड रिकमेंड, डोंट फोकस ऑन दैट कि पहले क्या था। सोचो मैं जीरो से कर रहा हूँ, मैं शुरू से कर रहा हूँ, आई विल पुट माई कंप्लीट एफर्ट ऑन इट। मैं 5 मिनट बाद जब हम कोर्स की ग्रेड बता देंगे, फिर मैं इस प्रिसाइज भी करके बताऊंगा व्हाई आई एम सेइंग दैट। तो अभी तक जिन बच्चों का जवाब आया वो यही है, दे आर गिविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो लेट्स मूव टू यार आपके कोर्स की आउटलाइन या ग्रेड क्या है। तो पहली चीज आपको वो आईकैप कहता है स्ट्रेटेजी, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी और हाउ डज स्ट्रेटेजी वर्क। उस पर वो आपको पहले थोड़े से ज्यादा मार्क्स थे, अब वो आपके मार्क्स रखता है 25 से 30 मार्क्स। तो वो आपको कह रहा है कि फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी के ऊपर जो आपके मार्क्स हैं दैट इज 25 to 30, उसके अंदर किस तरह स्ट्रेटेजी बनाना है, किस तरह वो स्ट्रेटेजी को डिफाइन करता है, वी विल डिस्कस दैट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। देन वो आपसे बात करता है स्ट्रेटेजी एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आईटी को वो इसके अंदर ही ले आया है। आईटी
is very important, but IT अब एक ऐसा अलग सब्जेक्ट नहीं रहा जैसा it used to be. And why is it so? If you think 20 years back, there used to be a post computer operator. तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे बंदे अपने काम रजिस्टर के ऊपर करते थे, डिफरेंट लिखते थे, तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर को देते थे कि वो कंप्यूटर के ऊपर ये काम करेगा. बट वर्ल्ड और टाइम हैज चेंज. अब एवरी पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्यूटर ऑपरेटर. कि ये नहीं कहेगा यार मेरी ईमेल चेक करके बताओ या मेरे वर्ड पे लेटर लिख के देखो. तो कंप्यूटर ऑपरेटर हर किसी से एक्सपेक्टेड है. इसी तरह व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेटेजी ऑफ आईटी, ये आईटी को किस तरह से लेके जाना है, तो वो भी आपसे एक्सपेक्टेड है आईटी के अंदर कि यार आपको इट्स पार्ट ऑफ यू बिल्ट इन योर जॉब. तो आपको पहले से पता हो देयर इज नो सेपरेट नीड फॉर दैट. जस्ट गिव मी टाइम टू. आईटी में आपके पास है 10 to 15 मार्क्स. अच्छा, आईटी इस वक्त दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है और इस पे एक थोड़ा सा हम रुक के डिस्कशन करते हैं. इस पे अक्सर डिस्कशन होती है हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिजनेस लीडर. देखें, आपके पास सीईओ इज द टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं, यू विल ऑलवेज फाइंड द आंसर दैट सीएफओ इज द नेक्स्ट पर्सन. एंड सीएफओ आर यूजुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. बट वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट. ये जो हम अकाउंटिंग से हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं या जिस चीज को हम किसी टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट समझते थे, अभी बिल्कुल ऑटोमेट होती जा रही है ये चीजें. जब ऑटोमेट हो रही हैं उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है देयर इज आईटी व्हिच इज डूइंग दिस. व्हाट डज दिस मीन? दिस एक्चुअली मींस वेयर वी नीड टू लर्न और थिंक कि आपको आज डिसाइड करना होगा हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लीडर. There are two options. Number one option is that being chartered accountants, being CFOs or business managers, we take that responsibility of IT, we oversee those activities, we do those work, we get done those work, and we lead the IT part of the organization as well. Or the other option is that head of ITs, guys from ITs, they perform better, they show that they are more needed in this situation, and they overtook that role. पर फाइनेंस का रोल फिर बहुत ही सेपरेट एक छोटा सा हो जाएगा जो कि सिर्फ बुक कीपिंग का होगा. अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनमें आईटी का भी बहुत सीनियर हेड होता है, फाइनेंस का भी बहुत सीनियर हेड होता है. बट व्हाट आई हैव सीन इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इस वक्त तक आईटी इतना नहीं है, वहाँ पे फाइनेंस को ही आईटी भी रिपोर्ट कर रहा होता है. तो फाइनेंस डायरेक्टर या सीएफओ जो हेड ऑफ फाइनेंस है उसे आईटी भी रिपोर्ट कर रहा होता है. What I am showing you is two pictures. Either it can remain same way, the same way, or it may happen कि अगर हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, तो उस सिचुएशन में rather than IT reporting to finance, I am afraid finance may need to report to IT. तो इसलिए ICAP इस कोर्स को अकॉर्डिंगली अपडेट कर रहा है. दैट इज वेरी गुड. तो जहाँ पे आप लोगों को एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी होगी कि you learn IT, you get that implemented, and then you get the job done as well. उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपके पास आती है दैट इज मार्केटिंग, सप्लाई चेन एंड ह्यूमन रिसोर्स. ये वो तीन चीजें हैं इसको उसने कंबाइन कर दिया. सो इफ आई राइट सप्लाई चेन, या आपसे मैं सेपरेटली नोट्स में भी शेयर कर दूंगा. सो डोंट वरी अबाउट राइटिंग दिस. मार्केटिंग एंड एचसीएम, ये वो तीन चीजें जिसकी नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है, पता होना बहुत जरूरी है. क्यों? व्हाई आई एम सेइंग दैट a business manager, a finance manager cannot work without the inclusion of any of these things. सप्लाई चेन का आपको नहीं पता हो बिकॉज आपकी डे टू डे कॉरेस्पॉन्डेंस में, और इवन इन मेनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द हेड ऑफ सप्लाई चेन, मार्केटिंग एंड टू सम एक्सटेंट लाइक इन केई हेड ऑफ एचआर आर आल्सो फ्रॉम सीए. तो वो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. देयर यूज्ड टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु यूज्ड टू थिंक इन दिस वे कि हमने कंपनी के मंथली 5 मिलियन बचा दिए. वी टॉक टू देम, हाउ डिड यू सेव दिस मनी? जैसे हम पहले कंपनी प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट देते थे, हमने खत्म कर दी, वो 5 मिलियन बच गए. व्हाट माय रिस्पांस वुड बी कि यू डिडंट सेव 5 मिलियन, यू एक्चुअली कॉस्टेड कंपनी 50 मिलियन. अपेरेंटली तो आपको दिख रहा है कि आपने ट्रांसपोर्ट खत्म की. ट्रांसपोर्ट खत्म करने से एक इजीली हो गया कि यार एम्प्लॉइज अब खुद आएंगे तो वो मेरी बस का खर्चा नहीं होगा.
बट द थिंग यू आर मिसिंग इज कि एम्प्लॉइज लेट आएंगे, एम्प्लॉइज फ्रेश नहीं आएंगे, एम्प्लॉइज की मोटिवेशन डाउन होगी। जब एम्प्लॉइज की मोटिवेशन डाउन होने से जो मेरे प्रोडक्ट पे जो उस पर फाइनल रिजल्ट आएगा, दैट विल कॉस्ट मी मच मोर देन कंपेयर टू दिस। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी वेयर वी नीड टू सी कि हम शायद क्वांटिटेटिव नंबर्स में देखें तो बहुत आसान है कि आप खत्म कर दो, बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटेटिव, दिस इज द रॉन्ग डिसीजन। सिमिलरली गोस टू few of the organization and lunch of the employees. They think कि यार lunch facility कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। Yes, they can say नहीं है, तो एम्प्लॉइज को खुद करनी चाहिए, इसलिए हम खत्म करते हैं, हमारी मंथली इतनी कॉस्ट सेविंग होगी। अगर कॉस्ट सेविंग के लिए कर रहे हैं, सो दिस इज नॉट द राइट डिसीजन। इफ देयर इज एनी अदर डिसीजन, दैट्स फाइन, अदर लॉजिक। कॉस्ट सेविंग के लिए क्यों नहीं? अब एम्प्लॉय क्या होगा, बाहर खाने जाएगा। अब क्या होगा, एम्प्लॉय रोजाना सोचेगा मुझे बाहर से क्या मंगवाना है, तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम उसका वेस्ट होगा ऑर्डर करने में, बाहर खाने जाएगा, वापस आएगा, ट्रैफिक में फंसेगा, ट्रैफिक में लेट होगा, एनर्जी जाएगी, मोटिवेशन कम होगी। दैट्स कॉस्ट मच मोर देन जो आप लंच कॉस्ट सेव करने से बचा रहे हैं। But when we become business manager, when we think we will go to the top of the organization, we should know these things. These are very important things, and that is why I am highlighting it again and again. जो एक मेजर चीज और ऐड हुई है, दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो कि पहले कोर्स में आपको इस तरह नहीं दिखती थी। हाउ टू मैनेज परफॉर्मेंस, इसमें आपका कुछ नंबर्स का हिस्सा भी आएगा जो आपको एक्चुअली दिखेगा। 15 to 25 मार्क्स का इसमें रखा है, जहां पे आप एक्चुअली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर जा रहे हैं। द लास्ट थिंग व्हिच इज कंसीडर्ड to be the utmost important thing is ethics. पहले वो CSR and ethics की बात करता था, corporate social responsibility and ethics, अब उसने सिर्फ उसको ethics कर दिया and 10 to 15 marks कर दिया है कि how you are going to work in no matter whatever the cases, इन तमाम सिनेरियोज में जहाँ strategy आ गई, IT आ गई, supply chain, marketing, human resource, performance management, the utmost important thing which will remain constant is ethics, that your act should reflect your ethics. Beyond everything, above everything should be your own ethics. That's very important. So that's a brief outline of the course. We will go in detail of those course in our subsequent sessions. But यहाँ पे जो important चीज है कि अब हमें तैयारी किस तरह से करनी है और एग्जाम में किस तरह से अप्रोच करना है। एक बात आप लोगों को समझने की यहाँ पे जरूरत है, and that is कि ये पेपर आपकी जनरल नॉलेज से पास नहीं हो सकता। आप पास्ट पेपर पढ़ोगे या आप कोई भी चीज देखोगे और उसके बाद अगर आप सॉल्यूशन भी पढ़ो तो काफी बार आपका ध्यान ये कहेगा यही तो मेरा दिमाग सोच रहा था। बट अगर आप वही पेपर करोगे तो पास नहीं होगा। आई कैन अश्योर यू दिस थिंग। अनटिल एंड अनलेस आपको आंसर याद हो स्पेसिफिक सेशन से या तो क्लास से या नोट से कि यार इस टॉपिक के बारे में ये बात हमने पढ़ी थी, ये बात डिस्कस हुई थी, एंड बेस्ड ऑन दिस वी रीच टू दिस कंक्लूजन। You cannot give answer from your general knowledge. Why I'm saying that? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लॉ को सोचो कि अगर आप लॉ जनरल नॉलेज से दो तो वो आप कभी भी पास नहीं हो सकता। आप अकाउंटिंग जनरल नॉलेज से करो, जब तक आपने नहीं पढ़ी हुई वो पास नहीं हो सकती। सिमिलरली टैक्स नहीं हो सकता। जो स्ट्रेटेजी है, जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसके पीछे भी एक पूरी साइंस है जो हमारी जनरल नॉलेज से सिमिलर जरूर है, बट जब तक हमें वो साइंस नहीं पता होगी, until unless we know that, we cannot reach to the conclusion. Number one thing. Number two thing, which is even more important, is drafting. None of us have mother tongue English, or even if we had mother tongue English, the drafting in itself is very important. मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप में से सब बच्चे सब इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हुए होंगे या इकोनॉमिक्स आती होगी। बहुत छोटी सी बात होती है कि आई आस्क व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड। सो बट थिंक योरसेल्फ, कैन यू राइट द डेफिनेशन ऑफ डिमांड? बिकॉज वो अनटिल अनलेस आप सबको पता होगा डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, बेसिक चीजें। बट अगर आप लिखने जाओगे डिमांड की डेफिनेशन तो शायद आप 0.5 मार्क्स भी ना ले सको आउट ऑफ 5, बिकॉज वो आपसे स्पेसिफिक एक्सपेक्ट करेगा कि वो उसके जो इंग्रेडिएंट्स है बेसिक के स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये सारी बातें उस डेफिनेशन के अंदर लिखी हुई हो। इफ यू राइट डिमांड इज समथिंग व्हिच इज नीडेड इन द मार्केट ऑफ अ प्रोडक्ट, यू मे गेट 0 मार्क्स, बिकॉज आप नहीं बता रहे कि किसी स्पेसिफिक टाइम जोन में ये होना चाहिए और स्पेसिफिक प्रोडक्ट होना चाहिए, बाय हुम होना चाहिए, वो इंग्रेडिएंट नहीं है। सिमिलरली गोज फॉर दिस सब्जेक्ट कि जब तक आपके आंसर्स में वो इंग्रेडिएंट नहीं होंगे, यू वॉन्ट गेट मार्क्स।
Second thing, your answer should be customized to the question. बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें अगर कॉन्सेप्ट याद भी आ गया, मुझे बात याद भी आ गई, टॉपिक याद भी आ गई, मैं ये गौर नहीं कर रहा कि वो मुझे क्या कह रहा है, हाउ पूछ रहा है मुझसे, व्हाट पूछ रहा है मुझसे, आइडेंटिफाई पूछ रहा है, एलिब्रेट पूछ रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, मैं इसको कंपेयर कह रहा है, वो क्या कह रहा है, मैं इसको सोचता ही नहीं और मैं अपना आंसर लिखने लग जाता हूँ. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब वो मैं सवाल पढ़ूं, what I used to do, I tell about myself, and now what you can do then. मैं एक सवाल को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ता था बिफोर राइटिंग माय फर्स्ट वर्ड ऑफ द आंसर, और मैं उसके अंदर व्हाट, हाउ, हूम, ये बातें और पूरा जुमला बार बार पढ़ के डिटरमिन करता था वो एक्चुअली क्या पूछ रहा है मुझसे. फिर मैं अपने जहन में आंसर बनाता था, यार वो मुझसे ये पूछ रहा है तो मुझे ये बताना है, वही बताना है जो उसने पूछा है, अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हुए. सो आई हैव नॉलेज, आई विल अप्लाई दैट नॉलेज ऑन व्हाट हैज बीन आस्क्ड. और जब मैं 3 या 4 लाइन लिख लेता था, मैं दोबारा जाके क्वेश्चन पढ़ता था टू सी कि कहीं मेरा आंसर उससे डेविएट तो नहीं कर रहा है जो उसने पूछा है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ और सोच रहा था, मैं जो सोच रहा था वो कुछ और था, लेकिन उसने अपना आंसर उससे डेविएट किया हुआ हो. जस्ट गिव मी अ सेकंड. सही है. तो अगर मेरा आंसर कहीं भी डेविएट हो रहा होगा बीच में, आई विल हैव दैट चांस, दैट एबिलिटी कि मैं उधर अपने आंसर को दोबारा से मोल्ड करके अकॉर्डिंगली उससे मैच कर लूं जो आंसर उसने पूछा है. मैं अगर वहां से डेविएट कर रहा हूं तो वहां पे वापस चला जाऊं. दैट सेकंड थिंग. नंबर थर्ड थिंग, मेक इट पर्सनलाइज, कस्टमाइज इन अ वे कि अगर वो बंदे का नाम लिख के दे रहा है तो उस बंदे के नाम लिख के ही डिस्कस करो. अगर वो बंदे की डेजिग्नेशन लिख के दे रहा है तो उस बंदे की डेजिग्नेशन लिख के डिस्कस करो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आईकेएप को क्या मसला है, इफ यू टॉक टू एग्जामिनर्स जो कि एक्चुअली पेपर चेक कर रहे होते हैं, और जैसे कि यार बच्चा, या तो 2 किस्म के बच्चे हैं. एक तो वो हैं कि जो पूरा रट्टा लगा के आ गए, वो अपना रट्टा लिख देंगे बगैर देखे कि मैंने पूछा क्या है. बट व्हेन यू कस्टमाइज इट ना, भले आप किसी रट्टे से भी मैच कर रहे होगे तो वो आपकी बातें स्पेसिफिक टू आंसर लगेंगी. मिस्टर अहमद सेड दिस और मिस्टर अहमद शुड डू दिस, आप वहां पे जाओ. नंबर 2 कि वो ये कहते हैं कि जनरल नॉलेज से दे रहे हैं, तो जनरल नॉलेज से तो आप नहीं दे सकते, आपको स्पेसिफिक पता होना जरूरी है. So second thing most important is you customize your answer, you see what is being asked. Then comes the point drafting. आप जब हम इस टॉपिक को पढ़ भी लेंगे, अगर आप इस टॉपिक के आप क्वेश्चंस पढ़ोगे आपको लगेगा आपको सब आता है, बट जब आप आंसर्स पे आओगे तो आंसर्स आप लिखना शुरू करोगे. ड्राफ्टिंग अगर आप लिख के करोगे, और लिख के ऐसे नहीं करना कि थोड़ा सा मैंने लिखा और बाद में मैंने सोच लिया मैं क्या लिखूंगा और यहाँ पे मैं खत्म कर दूं और फिर मैं सॉल्यूशन पढ़ूं और मैं कहूँ हाँ यार मैंने यही सोचा था, यहाँ तक भी सही होगा. बट हम इसको इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, वी विल हैव दिस असाइनमेंट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन, जहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको पूरा खुद से सॉल्व करना है. फिर जब सॉल्व कर लिया, कितने टाइम में सॉल्व करना है, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 18 मिनट में सॉल्व करना है जो आपके पास आईकेप में होता है. 20 मार्क्स का है तो 36 मिनट में सॉल्व करना है, 1.8 मार्क्स फॉर 1 मिनट. और वंस आई सॉल्व इट, तो मैं अब पेन से कोई एक वर्ड भी आगे नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जामिनर के पास मेरी वही क्वेश्चन लिखा हुआ जाएगा कि मैं पेपर में लिख के आ जाऊंगा. मैं खुद साथ उठ के नहीं जाऊंगा एग्जामिनर के पास. मैं एग्जामिनर को नहीं समझा सकता हूँ यार मेरा लिस्ट लिखने का मतलब ये नहीं था, ये था, नहीं चेंज कर सकता. एंड दैट इज वाई जो मैंने एक बार लिख लिया है, फिर हम उसे चेक करेंगे और उसे हम चेक करके डिटरमिन करेंगे एग्जामिनर सॉल्यूशन से या जो हमने पढ़ा है उससे कि क्या वो चीजें थी जो हमने मिस आउट करती हैं. हम एग्जामिनर्स कमेंट्स जाके देखेंगे कि क्या ये मिस्टेक और लोगों ने भी तो नहीं की. आई ऑलवेज से योर आंसर शुड मैच एग्जामिनर सॉल्यूशन, नॉट एग्जामिनर कमेंट. इफ योर आंसर मैचेस एग्जामिनर कमेंट, दैट मींस यू नीड टू डू इट अगेन. क्योंकि एग्जामिनर कमेंट्स में वो आपको आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि बच्चों ने क्या मिस्टेक की, एंड यू शुड नॉट बी अमंग दोज जहाँ पे मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हो रही हो, रादर यू शुड बी अमंग दोज जहाँ पे आपको ये पता चल रहा हो कि एग्जामिनर क्या कह रहा है कि किस तरह से करना है. So drafting is very important. I am highlighting it again and again कि हमें इस पेपर में अंग्रेजी is one thing, भले हम उर्दू में भी लिख रहे हो, लेकिन उसको इस तरह से डिपिक्ट करना जिससे मैसेज गेट अक्रॉस हो जाए, जो इसमें मैं खुद साथ नहीं जा रहा हूँ, उस पर हमारा काफी फोकस होगा टू लर्न दैट एबिलिटी
कि जहाँ पे हमें जो कॉन्सेप्ट आता हो हम उस कॉन्सेप्ट को कम्युनिकेट भी कर सकें। Why I am saying this, मुझे आज भी याद है when I was in मॉड्यूल बी, मेरे मॉक पेपर में इकोनॉमिक्स में I used to think, और मेरे टीचर को भी शायद उस टाइम पे ये लगता था मेरी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, इकोनॉमिक्स यूज्ड टू बी माय फेवरेट सब्जेक्ट। आप किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लो, आज भी इवन मैं इकोनॉमिक पॉलिसी एंड एवरीथिंग पढ़ रहा होता हूँ, मुझे लगता था बहुत अच्छी है मेरी इकोनॉमिक्स। जब मैंने मॉक पेपर दिया एक महीना पहले, आई गेट 9 मार्क्स आउट ऑफ 100। आई वॉज टोटली डिवास्टेटेड कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, इकोनॉमिक्स में मेरे इतने कम मार्क्स आ जाए। बट दैट्स वेयर आई रियलाइज कि मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, मुझे लिखना नहीं आता। एंड आई हैड 1 मंथ टू वर्क ऑन दैट राइटिंग स्किल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और अल्लाह के शुक्र से तो मेरा वो पेपर पास हो गया। इसी तरह जब मैं सीए फाइनल में आया, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी कि मुझे एग्जामिनर कमेंट्स और सॉल्यूशन याद होते थे। रीजन बीइंग कि रट्टा नहीं लगाता था, रट्टा मुझसे जिंदगी में कभी लगा ही नहीं है, लग ही नहीं पाता, बट मैं याद इसलिए करता था कि मैं बार बार जाके उन्हें पढ़ता था, स्पेशली कमेंट्स तो एग्जाम में लिख के भी नहीं आया कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो दूसरे बच्चे कर रहे हैं और मुझे नहीं करनी। मैं अगर आपको इस जगह पे ड्राफ्टिंग के साथ कुछ चीजें बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जामिनर बार बार कहता था इस बात को, स्टूडेंट्स शुड रियलाइज द फैक्ट that they will not get any additional marks for whatever they are writing except for what has been asked। तो अगर आप कुछ भी लिख दो उसके अलावा जो पूछा गया है, आपको कोई एडिशनल मार्क्स नहीं मिलेंगे। हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार ये टॉपिक के बारे में या जिसने पूछा है उसके बारे में तो नहीं आता, थोड़ा सा मैं इधर उधर की बातें करता हूँ, कुछ तो मिल जाएगा। एग्जामिनर डज नॉट गिव एनी मार्क्स, वो आपकी स्ट्रेटेजी को भी समझता है, तो वो इररेलेवेंट के ऊपर स्पेसिफिकली ये बात कहता है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा एडिशनल। दूसरा मसला, वो क्या कहता है एग्जामिनर कि स्टूडेंट शुड रियलाइज द फैक्ट that getting first 50% mark in any question is much easier than getting additional marginal marks। तो हम मिस्टेक क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि एक सवाल मुझे अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है, गुड आता है, तो मैं उस पर अगर मुझे 20 मार्क्स में 36 मिनट देने थे, मैं 36 की जगह 50 मिनट्स दे दूंगा। और मैं ये कहूंगा कि यार मुझे बहुत अच्छा आता है, ये बहुत अच्छी तरह होना चाहिए, बट इसकी वजह से मैं क्या करूंगा, मेरा एक और सवाल रह जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने पेपर को इस स्ट्रेटेजी से करूं। व्हाई आई एम फोकसिंग स्ट्रेटेजी ऑन एवरीथिंग, बिकॉज स्ट्रेटेजी कम्स इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। थिंक ऑफ एनीथिंग, आई कैन प्रूव की स्ट्रेटेजी वहां पे आएगी। मैं उसको इस तरह से स्ट्रेटेजाइज करूं अपने सॉल्यूशन को कि ठीक है जो अच्छा आता है वो भी मैं 36 से बहुत ज्यादा हो गया तो 38 या 40, इससे ज्यादा मैं नहीं जाऊं करूं, और जो कम अच्छा आता है उसको भी मैं किसी हद तक करूं, ये ना मैं ऑल टुगेदर छोड़ के आ जाऊं। क्योंकि जो बहुत अच्छा, अगर मैंने उसके 20 मार्क्स का था, 36 मिनट देने से मैंने 50 मिनट दे दिए, इससे मैंने बहुत ज्यादा मार्क्स भी ले लिए, तो चाहे 16-17 ले लूंगा मैं 20 में से 10 से ज्यादा। बट जो मैं पूरा सवाल छोड़ रहा हूं अगर एक और 20 मार्क्स का, तो उस 20 मार्क्स में पहले 8-10 मार्क्स लेना वैसे ही बहुत आसान था। ठीक है, तो मैं अगर इसको 36 मिनट में खत्म करके मैं 14 मार्क्स ले लेता, फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स कम हो जाते मेरे, या 3 मार्क्स कम हो जाते, 14 या 13, और मैं वहां पे 8 या 10 ले लेता इस स्ट्रेटेजी के साथ, सो दैट कुड हैव बीन मच बेटर वे। तो मुझे अपने पेपर को सॉल्व करते हुए इस तरह से स्ट्रेटेजाइज करना है कि मेरा कुछ भी पेपर में रहे नहीं। हाउ डू आई यूज टू डू इट, ये वो चीजें हैं जो कि शायद हम पहली क्लास में ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर पा रहे हैं, सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम इस तरह से नहीं कर पाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम कि इसे आप गौर से सुने और फिर इसको याद रखें और इस पर अमल करें। कि अगर आपका 50 मार्क्स का पेपर है जो आपको बहुत अच्छा आता है और आप सोच रहे हैं कि यार 1.18 मिनट कम है, तो स्ट्रेटेजी बना सकते हैं हम कि हम उसमें 2 मिनट देंगे और 100 मिनट इस 50 मार्क्स को दे देंगे। फिर बचा 50 मार्क्स का पेपर जिसके लिए आपके पास 80 मिनट्स है। आपने सोचा कि यार इसमें से 30 मार्क्स ऐसा है जो मुझे सही आता है, बहुत अच्छा भी नहीं आता, बहुत बुरा भी नहीं आता। आई कैन अगेन मेक स्ट्रेटेजी कि ठीक है यार इसमें मैं 1.8 मार्क्स दे दूंगा, 1.8 मिनट्स ही दूंगा, जो नॉर्मल टाइम में बहुत अच्छा नहीं आता, तो मेरे 48 मिनट्स हो गए। अब मेरे पास कितने बचे, 32 मिनट्स बचे 20 मार्क्स के लिए। आई होप आई एम डूइंग द मैथ करेक्ट। 48 मिनट्स हो गए ये, नो नॉट 48, इट वुड बी 54।
सो 1.8 मार्क्स से इट वुड बी 54 मिनट्स। अब मेरे पास बचे हैं 26 मिनट फॉर लास्ट 20 मार्क्स। तो अगर मैं अभी भी देखता हूँ तो मेरे पास 1.3 मिनट है जिससे मैं 26 मिनट में ये कर सकता हूँ। बट ठीक है, ये मुझे कम अच्छा आता है, मैं इसको कम टाइम दे रहा हूँ, ये मैंने पहले से स्ट्रेटेजी बनाई है। सो आई वॉन्ट गेट पैनिक व्हेन आई एम अटेम्प्टिंग द पेपर। मुझे पता होगा मेरा जो पहले 50 मार्क्स अच्छे आते हैं, मुझे 100 मिनट उससे देने, 2 मिनट में दे सकता हूँ। मैं 1.8 मिनट पे अपने ध्यान में रखता हूँ कि अब खत्म होने वाला होना चाहिए, 2 मिनट पे मैं खत्म कर दूंगा। अगले 30 मार्क्स पे मैं उतना ही टाइम दूंगा जितना चाहिए। आखिरी 20 मार्क्स जो मुझे आते ही कम अच्छे हैं, मैं उस पर कम टाइम दूंगा और मैं उस तरह से पास कर सकता हूँ। बट दिस शुड बी माई प्री प्लान। ये मैं पेपर के अंदर जाके प्लानिंग ना कर रहा हूँ, मुझे पता हो कि मैंने कैसे करना है। जब मैं 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में अपना पेपर पढ़ रहा हूँ तो मैं उस वक्त डिसाइड कर सकता हूँ कि जिसको मैं कैटेगरी ए में लेके जा रहा हूँ, मैं उनके उस क्वेश्चन मार्क्स क्वेश्चन पे ए लिख दूँ, जो मुझे लग रहा है कम अच्छे आते हैं, जब मैं बी लिख दूँ या सी लिख दूँ इसके अंदर कैटेगरी। इसके अंदर भी अगर मुझे डिसाइड करना है, यू कैन हैव एनी वे, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग वन ऑफ द वेज। तो इसमें भी जो मुझे सबसे पहले करना है मैंने उसे प्लस कर दिया, जिसे बाद में करना है माइनस कर दिया। सेम गोस फॉर बी एंड सी। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डिवाइस अ स्ट्रेटेजी। नंबर 2 थिंग, ड्राफ्टिंग हमने देख ली, हम लिख के करेंगे। हमने ये देख लिया कि हम पूरे पेपर को किस तरह स्ट्रेटेजाइज करेंगे। जो इसके बाद थर्ड थिंग आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हर सब्जेक्ट के लिए जब भी बात करता हूँ बार बार फोकस करता हूँ, दैट इज एग्जाम सिमुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम की सिमुलेशन करें, एग्जाम की प्रैक्टिस करें उसी तरह जिस तरह आईकैप में होती है। यू आर लकी दैट आपके पास आईकैप लाइब्रेरी का एक्सेस है जहाँ पे एग्जामिनेशन होता है। कोई भी दिन निकालें, और इफ यू कैन नॉट गो टू आईकैप तो घर में कोई ऐसी टेबल चेयर ढूंढें जहाँ पे आप सिमिलर एनवायरनमेंट ला सकते हो। इस चीज को करना हम कंपैरेटिवली थोड़ा सा जल्दी शुरू कर देंगे। हम वेट नहीं करेंगे कि मैं 100% कोर्स रिवाइज भी कर लूँ, मैं फिर ये जाके करूंगा या करूंगी। व्हाट विल वी डू, वी विल डू कि जब हम सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ कोर्स कर चुके होंगे, एटलीस्ट एग्जाम से 1.5 से 2 महीना पहले, या एटलीस्ट 1.5 महीना पहले, 1.5 मंथ, मैं ये प्रैक्टिस करूंगा कि मैं 3 घंटे एग्जाम में उसी तरह बैठ के प्रैक्टिस करूंगा जिस तरह मैं एक्चुअल एग्जाम में जाता हूँ। कोई पास पेपर लूंगा, कोई सिमिलर पेपर लूंगा, यहाँ पे मैं आईसीडब्ल्यू के पेपर कर सकता हूँ। और 15 मिनट्स में रीडिंग टाइम रखूंगा जिस तरह रीडिंग में एग्जाम में करता हूँ। 3 घंटे में मैं उसी तरह सॉल्व करूंगा जिस तरह मैं 3 घंटे एग्जाम में करता हूँ। बिकॉज दैट इज द थिंग जो मेरे 6 महीने साल की जो एफर्ट है उसका फाइनल रिजल्ट होता है। सो इफ आई डोंट प्रैक्टिस फॉर दैट फाइनल रिजल्ट ऑफ एग्जाम, सो वो मेरी एफर्ट पूरी जाया हो जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो इस पे मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि आप 6 महीने तैयारी करते हैं एक पेपर की, और उस 3 घंटों के अंदर जो आप लिख के आएंगे आपको वो एक्चुअली मैटर करता है। ठीक है कि आप उस 3 घंटों में क्या लिख के आए, आप जो भी तैयारी करें, दैट डजंट मैटर अनटिल यू डू नॉट राइट दोस 3 आवर्स। व्हाट वी डू मिस्टेक कि हम 6 महीने मेहनत में तो बहुत टाइम लगा देते हैं, बट वो जो 3 घंटे हैं उसकी प्रैक्टिस हम नहीं करते। एंड दैट्स वेयर हमें चैलेंज होता है, दैट्स वेयर वी फाइंड इट चैलेंजिंग। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से और व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट कि उस 3 घंटे की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। व्हाई आई एम फोकसिंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि उस 3 घंटे में हमारे ऊपर जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं प्रेशर भी आ जाता है, डिफिकल्टी भी होती है, वी आर अनेबल टू परफॉर्म। बट अगर हमने उस 3 घंटे की प्रैक्टिस की भी होगी तो मेरे लिए वो बहुत आसान हो जाएगा कंपैरेटिवली उस चीज को ओवरकम करना, उस चीज को करना, उस चीज में प्रेशर आना। बिकॉज आई वुड नो व्हाट कैन गो रॉन्ग। जब मैं 3 घंटे मॉक कर रहा हूँ मैं उसी तरह करूंगा जिस तरह मैं एग्जाम में जाके पेपर अटेंड करता। सो दैट वुड बी द सेम थिंग। सो दैट इज इम्पोर्टेंट कि मैं इस चीज की एग्जाम सिमुलेशन की प्रैक्टिस लाजमी करूं। एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इज डूइंग इट टाइमली। एंड दिस इज नॉट फॉर ओनली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। इस पेपर के लिए सीपैप 3 के लिए जहाँ पे मैं स्ट्रेटेजी के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कह रहा हूँ वो सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये हर पेपर के लिए है। ऑलराइट, एंड व्हाई आई एम सेइंग सो कि टाइमली, अगर आप इसको एग्जाम से 1 हफ्ता पहले करते हो, इट्स टू लेट। आई यूजुअली से डोंट डू इट इफ यू हैवंट डन इट अर्लियर, बिकॉज 1 हफ्ता पहले जब आप करोगे और अगर आप ड्राफ्टिंग ऐसी करते हो और आपको पता चला कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है या आपकी बहुत बुरे हालात हैं,
यू वॉन्ट बी एबल टू पुट रिमेडियल एक्शन। आपके पास वो टाइम नहीं होगा कि अब आप उसे 1 हफ्ते के अंदर सही कर सकें, जिसमें और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, पर रादर देन कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता, आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा। बट इफ यू डू इट लाइक 1.5 मंथ्स बिफोर, आपके पास वो सफिशिएंट टाइम होगा टू पुट द रिमेडियल एक्शन। इसको आप सही कर सको, इसको आप इम्प्रूव कर सको, और इस इम्प्रूव करके आप पेपर को पास कर सको। आपको वो पता चल जाएगा व्हाट आर दोज एरिया जहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, जहाँ पे आपको फर्दर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आप उस पर स्पेसिफिक एफर्ट करें। जहाँ पे आपको लगता है कि टीचर से मुझे फर्दर डिस्कस करने की जरूरत है, उसको मैं जाके डिस्कस करूँ। जहाँ पे मुझे लगता है मुझे अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करने की जरूरत है, मैं उसको करूँ। सो आई विल हैव दैट टाइम इफ आई एम 1.5 और 2 मंथ्स बिफोर एग्जाम, ताकि मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड एफर्ट्स करके पास कर सकूं। जहां तक कोई सवाल है सो लेट मी नो। अगर सवाल नहीं है तो बता दें मुझे कि सवाल नहीं है, ताकि हम आगे चलें। कोई मुश्किल परेशानी हो सो जस्ट लेट मी नो। कोई मुश्किल परेशानी नहीं है, सो दैट्स ग्रेट। तो अब हम चलते हैं यहाँ से आगे। हमने क्या क्या चीजें देखी, हम उसे क्विकली समराइज करते हैं, और देन वी मूव टुवर्ड्स एंड ऑफ क्लास, और फिर हम नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करते हैं कि हमें उसमें क्या करना है। हमने इस चीज को एनालाइज किया कि इस पेपर की जरूरत क्या है, ये पेपर आईकैप ने क्यों लाया है, इस पेपर में आईकैप किस तरह से अपग्रेड कर रहा है करंट रिक्वायरमेंट्स के तहत, हम इस पूरी सिचुएशन में कहाँ फिट इन होते हैं। उसमें हमने एग्जांपल्स देखी वेरियस फ्रॉम लाइक एयरबीएनबी टू अमेज़न टू टेस्ला टू दराज। लोकल भी हमने एग्जांपल्स देखी, इंटरनेशनल एग्जांपल्स भी हमने देखी। उसमें हमने स्टार्टअप्स का जिक्र किया पाकिस्तान में जो आ रहे हैं, जैसे कि जिसमें हमने कुछ नाम लिए, एयरलिफ्ट, बाजार, क्रेव एंड मैनी अदर स्टार्टअप्स लाइक दिस। उसमें हमने ये डिस्कस किया कि कोर्स आउटलाइन क्या क्या चीजें हैं। अगर मैं उसको कोर्स को ब्रीफली देखूँ ना, तो वो एक जगह स्ट्रेटेजी की ओवरऑल बात कर रहा है, फिर वो आईटी की बात करता है, फिर ह्यूमन रिसोर्स, सप्लाई चेन और मार्केटिंग की बात कर रहा है वो। उसके बाद वो आपके ऊपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करता है और एथिक्स की बात करता है। उसमें हमने देखा मेजर पार्ट आपका होगा कि वो आपको एक सिनेरियो देगा, वो एक आपको कहानी बताएगा। वो पहले क्या करता था, एक अपने किस तरह से पूछता था। अगर मैं आज से पीछे चला जाता हूँ 10 साल पहले, और फिर वो उसने बीच में थोड़ा सा चेंज किया और अब उसको ज्यादा चेंज किया, कि वो पहले एक्सपेक्ट करता था आपकी नॉलेज टेस्ट करता था कि क्या आपको ये पता है या नहीं पता। वो आपसे कहेगा ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दो, इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन बता दो, इस कॉन्सेप्ट के एडवांटेजेस क्या है, इस चीज के डिसएडवांटेजेस क्या है। फिर उसे लगा कि यार ये पुराना होता जा रहा है, जैसे उसका नाम सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट था, तो उसने उसका नाम कर दिया बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। और वो उसको आपको छोटे छोटे सिनेरियोज देना शुरू कर दिए उसने, जहाँ पे छोटे केस स्टडी, छोटे सिनेरियोज, और फिर भी वो किसी हद तक हो जाता था। बट नाउ व्हेन इट बिलीव कि यार वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट, यू आर गोइंग टू बिकम बिजनेस मैनेजर्स, जहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी होगी, आपको डिसाइड करना होगा। और वर्ल्ड ऐसी नहीं है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज मिले और उसमें आप डिसीजन ले लें। वर्ल्ड में चैलेंजेस आते हैं। सो हाउ डज इट चेंज इट? इट चेंजिंग सब्जेक्ट, जहाँ पे वो आपको पूरा केस सिनेरियो देना होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, उसने आर&डी के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, तो आर&डी के अंदर इन्वेस्टमेंट का ये रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर इतने उसके पास लिक्विडिटी अवेलेबल है, इसके अंदर उसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? इफ आई टॉक अबाउट हार्वर्ड केस स्टडी, तो लास्ट टाइम आईके अपने एनएफओ में भी यूज की थी, नेशनल फाइनेंशियल ओलंपियाड में, कि उसने बताया कि एक कंपनी है जिसके पास इतने इन्वेस्टमेंट लेने के 2-3 ऑप्शंस हैं। अब आपको डिसाइड करना है। एक ऑप्शन ये है कि वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट ले ले, एक ऑप्शन ये है कि वो लोन ले ले इस रेट के ऊपर, लेकिन उसमें ये गारंटी भी साथ में देनी होगी। एक ऑप्शन है कि हाइब्रिड ले ले, इतना अमाउंट लोन मिले लेकिन उसमें इतना अमाउंट लोन होगा और इतनी इक्विटी भी वो साथ दे रही होगी। यू हैव टू टेक डिसीजन। वंस यू टेक डिसीजन, फिर वो आपको बताएगा अब इन पैसों से आप क्या कर सकते हो। वो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आप नई प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो आर&डी के ऊपर। एक ऑप्शन है कि आप फर्दर अपने जो रिसीवेबल लोगों के पास फंसे हुए हैं उन्हें डिस्काउंट दे दो कि वो अर्ली आपको पे कर दें। तो ये आपके पास ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप पेबल को अर्ली पे कर दो अपना और डिस्काउंट ले लो। एक चीज है कि आप अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन ले आओ, अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचने लग जाओ। तो अब ये डिसीजन सिर्फ नंबर्स पे नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन और आर&डी वाली चीजें आपको स्ट्रेटेजी डिसाइड करेगी कि वेदर यू वांट टू गो टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे पूरी दुनिया आपके कस्टमर हो जाएगी। जब हम रीजनल हैं
इफ यू थिंक ऑफ द क्लास 2 years बैक, सिर्फ क्लास वही ले सकता था जो इस क्लास में बैठा हुआ है बच्चा। बट इफ यू थिंक ऑफ क्लास नाउ, सो कोई भी बच्चा पूरी दुनिया से कहीं भी बैठ के क्लास ले सकता है, वेदर वो अपने किसी गांव में है, वेदर वो दुनिया के किसी सबसे बड़े शहर में हो, वो क्लास ले सकता है। तो द वर्ल्ड इज चेंजिंग। सिमिलरली आप स्ट्रेटेजिकली वहां पे डिसाइड करोगे और उसके आगे जा जाके वो सिनेरियोज आपसे चेंज करता रहता था। तो अब इस केस कोर्स में व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि वो आपको सिनेरियोज दे रहा होगा जहां पे आपके रट्टे से काम नहीं चलेगा। हैविंग सेड दैट, रट्टे से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट पता होना चाहिए ताकि आप राइट डिसीजन ले सको बेस्ड ऑन योर डिसीजन। इस केस में फॉर एग्जांपल हार्वर्ड के स्टडी में आपको मैक्सिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन लानी चाहिए अपने डिसीजंस ले लेके कि किस तरह कंपनी की शेयर प्राइस मैक्सिमम हो जाए बेस्ड ऑन योर डिसीजन। बट until and unless you know the basics of those decisions, you cannot take those decisions. So वो हम चीज इसमें कर रहे होंगे, जो हम देख रहे होंगे, जिसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे साथ साथ, that how to reach to that point as well. So यहाँ तक हमने briefly cover किया why the subject is important, how we are going to study it, what is the course outline, how we are going to prepare for it, and how we are going to pass the exam. What I can assure you one thing here before ending the class is that अगर आप तमाम lectures with sincerity, with attention, with efforts लेते हैं और उसके बाद वो assignments करते हैं जो हम क्लास में डिसाइड कर रहे होंगे, हम एग्री कर रहे होंगे, I can assure you there is no reason not being able to pass this paper. ये पेपर यूजुअली इवन सिंस माय टाइम, जब 10 साल पहले मैं पढ़ा करता था, बड़ा निग्लेक्टेड पेपर रहता था इन अ वे कि हम कहते थे यार ये तो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली क्या होता था, व्हाट आई हैव सीन उस टाइम पे, इसके साथ भी और आईटी के साथ भी, कि यही पेपर अक्सर बच्चों का रुका हुआ होता था बिकॉज वो लगता था ये तो हो जाएगा, और यही पेपर सबसे ज्यादा तंग कर रहा होता था। आईटी FAFR या AAFR जो अब उसका नाम है, ये बड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा पास हो जाता था, टैक्स कंपैरेटिवली ज्यादा पास हो जाता था, कॉर्पोरेट लॉ, क्योंकि हम उसमें एफर्ट ज्यादा कर रहे होते थे, हमें लगता था कि उसमें एफर्ट की जरूरत है और हमें ये लगता था इधर एफर्ट की जरूरत नहीं है। बट एक तो सिलेबस हैज चेंज्ड अ लॉट ओवर द टाइम, एंड सेकंड थिंग इज द वे इट इज मूविंग। जब तक मैं इस पर टाइम एंड एफर्ट नहीं लगाऊंगा, आई कैन नॉट पास दिस पेपर, और जब तक मैं इस पेपर को पास नहीं करूंगा, आई कैन नॉट कंप्लीट माई CA। So, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट हम क्लासेस रेगुलरली लें, अगर कोई मिस हो जाए तो लेक्चर लाजमी कवर करें, असाइनमेंट लाजमी करें, जो हमारे असाइनमेंट्स होंगे वो हम लाजमी करें, पास पेपर लिख के हम करें, हम पास पेपर की कंप्लीट एग्जाम सिमुलेशन करें, और हम फिर फुल एफर्ट करें, और हमें एफर्ट इस तरह करनी है CA फाइनल में, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू वुड बी रिसेंटली ज्वाइनिंग CA फाइनल, कि जहाँ पे आपका CA इंटर से बड़ा डिफरेंट है। ये जो आपका कैफ था, इसमें सिलेबस कंपैरेटिवली बहुत वाइड है, वहाँ पे जो एक सब्जेक्ट होता था वो यहाँ पे इसके 1 या 2 चैप्टर जितना है, तो बहुत वाइड है। तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं एंड के लिए छोड़ दूँ, मैं उस टाइम पे पढ़ूंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आज से पढ़ूँ। आपको नहीं पता आखिर में आपका कौन सा ऑडिट क्लाइंट होगा जिस क्लाइंट की वजह से आपको उस टाइम पे टाइम ही ना मिल रहा हो पढ़ने के लिए एंड के मंथ्स में, फिर आपकी एग्जाम लीव कर्टेल ना हो जाए, उस वक्त आपको कोई और बीमारी, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। That now I have the time, whenever I get the time, right from the day one, I study, I start doing that. That's very important. And in this way, there is no reason that we are unable to pass it. Thank you very much. With that, we end our first class. If there is any question, you can let me know in next 30 seconds, or we will end the class. Thank you. So I believe there is no question. Let's end the class. Thank you very much. It has been a pleasure meeting all of you.